Myself, Engineer Alok Kumar Verma, Faculty Department of Biomedical Engineering, Institute of Engineering Technology, Bundelkhand University, Jhansi. Today, I will discuss introduction of radiology and medical imaging. Introduction of radiology. Medical imaging techniques is process imaging in the interior and body, clinical analysis, medical intervention as well as visual representation of the medical imaging seeks reveal internal structure hidden by the skin and bones as well as to diagnose and treat disease. Medical imaging also establish a database of normal anatomy and physiology to make it possible to identify abnormalities. Although imaging of removed organs and tissues can be performed for medical reasons, such as procedure are usually considered part of pathology instead of medical imaging, such as medical imaging is a anatomical medical imaging is diagnose anatomical structure as a disease anatomical structure such as a find out the problems of the body what is the medical imaging. मेडिकल इमेजिंग जो है वो क्या होती है और मेडिकल इमेजिंग को हम क्यों करते हैं और मेडिकल इमेजिंग की हमें क्या ज़रूरत पड़ी. तो अभी हमने यहाँ देखा कि मेडिकल जो इमेजिंग है हम क्यों करते हैं. मेडिकल इमेजिंग से हम अपने बॉडी का एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, बोन्स को स्ट्रक्चर को हम इमेज लेते हैं, जिसमें हमको क्या होता है कि टिश्यूज, ऑर्गन्स और बोन्स का हमको पर्टिकुलरली इमेज मिल जाता है, जिससे हम क्या करते हैं जो डिसीजेज हैं उन डिसीज़ का फाइंड आउट किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. इससे हम मेडिकल जो ट्रीटमेंट है और मेडिकल जो वर्किंग है वो हम कर सकें. ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द मेडिकल इमेजिंग. व्हाट इज़ द मेडिकल इमेजिंग. मेडिकल इमेजिंग इज़ द विजुअलाइजेशन ऑफ द बॉडी पार्ट, मीन्स दैट anatomical structure, means that medical imaging visualization of the body part, tissues, organs, clinical diagnosis, treatment and disease monitoring. Imaging techniques encompasses of the field of radiology, nuclear medicine, optical imaging and imaging guided interventions, such as shown figure. This is medical image, this is medical image, and next this medical image means that finally anatomical structure part of the body. Okay. Next, what is the radiology? Main part of the radiology. What is the radiology? Radiology is the represent a branch of medicine that deals with the radiant energy in the diagnosis and treatment of disease by using technology. This is field can be divided into two areas, diagnosis radiology and interventional radiology. Diagnosis radiology means that anatomical structure images, find out the bone fracture bones and tumor detection techniques and ब्रेस्ट कैंसर्स etc. ओके. एंड जब हम रेडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो रेडियोलॉजी में हम क्या करते हैं, रेडियोलॉजी में हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर के लिए को हम इमेज करने के लिए वहाँ पर मशीनरी होती है. मशीनरी है जैसे कि MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड. इन मशीनों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बॉडी को स्कैन करते हैं. जब बॉडी को स्कैन करते हैं तो स्कैन करने के बाद हमको एबनॉर्मलिटीज इनसाइड द बॉडी हमको इमेज के थ्रू मिल जाती है. और जिससे आफ्टर दैट इंटरवेंशन रेडियोलॉजी मीन्स दैट जब हमको किसी डिसीज़ के बारे में पता चल जाता है या डिसीज़ जो हम डायरेक्टली पेशेंट से पता नहीं कर सकते उसको हम रेडियोलॉजी इमेजिंग के द्वारा पता करके उसका ट्रीटमेंट
भी हम करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट इज ए डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, दैट इज ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, यानी थेराप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं इसको हम, ओके। नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट use medical imaging such as X-rays, ultrasound, CT image, MRI scan, diagnosis disease anywhere in the body, okay. Ultrasound, CT scan, MRI, diagnosis in the where in the body, यानी कि जो बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है, इस स्ट्रक्चर्स को हम स्कैन करते हैं और स्कैन करने के बाद हमारे इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में या टिश्यूज ऑर्गन्स में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ होती है, उस एबनॉर्मलिटी को क्या करेंगे हम या इमेज की फॉर्म में उसे डिटेक्ट कर लेंगे, और जो हमें इस तरह से इमेज की फॉर्म में मिल जाएगी, जैसे आप यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है, जो इमेजेस हैं आप देख रहे हैं, दिस इज इमेजेस। इस इमेज की फॉर्म में क्या होगा कि हमको यहाँ पर मिल जाएगा इसका इमेजेस। तो यहाँ पर हमें जो एबनॉर्मलिटीज़ उसकी जो मिल जाएगी, उस एबनॉर्मलिटीज़ को हम क्या करेंगे, क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका यूज़ करेंगे और मेडिसिन प्रैक्टिस के लिए यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज रेडियोलॉजी टेक्निक्स। व्हाट इज टाइप ऑफ रेडियोलॉजी टेक्निक्स? हियर सम रेडियोलॉजी टेक्निक्स आर शोन हियर। फर्स्ट वन इज अल्ट्रासाउंड, ओके। नेक्स्ट वन इज X-rays radiography, CT computer tomography, MRI magnetic resonance imaging and PET positron emission tomography, SP ECT single photon emission computer tomography and ठीक है, ओके। particularly use of ultrasound, particularly radiography, particularly CT scan computer tomography, different diseases or different electrons beam are used and different of techniques, okay. First I will discuss first ultrasound techniques. अल्ट्रासाउंड बेसिकली अभी आप सब जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड बेसिकली होता क्या है। अल्ट्रासाउंड अभी मैक्सिमम जो यूज किया जाता है कि लेडी प्रेग्नेंट्स लेडी को बेबी की ओवरऑल इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का मैक्सिमम यूज करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी आप और भी इसका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हेयर इंट्रोडक्शन, द परफेक्ट इकोकार्डियोग्राफिक मशीन वुड प्रोड्यूस infinitesimally small ultrasound beam and incredible sweep speed and uniform energy throughout its beam length. Even with the perfect echocardiographic machine, we are still left with the ultrasound interaction with tissues. Means that narrow electron beam जो है वो हमारे क्या करेगी, वो टिश्यूज़ के साथ इंटरेक्शन जो करेगी वो प्रॉपरली करेगी। और यहाँ पर अगर हम एक्सरेज का यूज करते हैं, जैसे एक्सरेज है, एक्सरेज क्या होता है कि उसमें जो उसकी इलेक्ट्रॉन बीम होती है वेरी हाई होती है और उससे थोड़ा से लेवल में हम और नीचे आते हैं। तो आप जानते हैं सीटी स्कैन जिसमें हमारे वहाँ पर एक्सरेज बीम होती है वो उससे हल्का नैरो होगी। नेक्स्ट हम आएंगे एमआरआई में आएंगे, तो एमआरआई में और हमारा वहाँ पे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होगी। और अल्ट्रासाउंड में आएंगे तो वेरी नैरो इलेक्ट्रॉन बीम हमारी यहाँ पर होगी, जिससे हमारा क्या होगा, इंटरएक्शन विथ टिश्यूज, ओके। नेक्स्ट, द इंटरएक्शन कैन बी कॉज मेजरमेंट error, artifacts and poor picture quality, and understanding the basic interactions of tissues with ultrasound provide the basic of avoiding error and misdiagnosis. These interaction has also lead to the development of new technology such as automatic border detection. Means that आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो हमारे पास एक डिटेक्टर होता है, उस डिटेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको स्किन पर रोटेट करते हैं, जिससे हमको क्या होता है कि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स बीम्स होती है वो रिफ्लेक्ट होती है जाकर टिश्यूज के ऊपर, और आफ्टर टिश्यूज से रिफ्लेक्ट होके वो वापस आते हैं
और जिससे हमको एक इमेज की फॉर्म में क्या होता है, उस टिश्यूज का, उस ऑर्गन्स का पर्टिकुलर हमको एक शेप मिल जाता है, उसका एक मेजरमेंट मिल जाता है कि वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो इस तरह से दिस इज इंट्रोडक्शन अल्ट्रासाउंड एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस टिश्यू इंटरएक्शन, अल्ट्रासाउंड इंटरएक्शन विथ टिश्यूज। ओके, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव्स व्हेन दे स्ट्राइक ए मीडियम cause expansion of compression of the medium. Ultrasound wave interact with tissue four basic manners. There are four types of manners are used. First is one reflection, second is scattering, refraction and attenuation. Firstly हम क्या करते हैं, जब हम उसमें जो हमारे पास होता है वो ट्रांसड्यूसर होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, जब हम पेशेंट के ऊपर अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा जब उसको हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो वहाँ पर उस मशीन से क्या होता है कि हम नैरो इलेक्ट्रॉन बीम आप निकलती है, और नैरो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होती है वो क्या होता है, पेशेंट के ऑर्गन्स और टिश्यूज के पास तक जाती है, और आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट टू रिटर्न बैक, आफ्टर दैट रिटर्न बैक देन द शो इन द इमेज। क्या होता है कि जो आपने उस ट्रांसड्यूसर का यूज किया है, जो आप उसके पेशेंट के ऊपर यूज कर रहे हैं, उसके बाद जब पेशेंट पर वहाँ पर पहुँचती है उसके बीम और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो एक इमेज की फॉर्म बनाती है। उस इमेज की फॉर्म से हमें उसका मेजरमेंट पता चल जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, अटेन्यूएशन, दिस इज फोर टाइप्स ऑफ मैनर्स। Reflection occurs when ultrasound wave detected toward the transducer. The major factors affecting the amount of the reflection are angle of incident, acoustic impedance mismatch, width of the tissue boundary, angle of tissue boundaries. Here this is electron beam, but here this is tissue and this is transducer, reflect the electrons this side, and after that the reflect electron here and the show in the image Okay, यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझिए कि यहाँ पर हमने ट्रांसड्यूसर का यूज किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम, नैरो इलेक्ट्रॉन्स बीम्स जो है वो निकल के आपके ये टिश्यूज पार्ट तक जा रहे हैं, और जब ये टिश्यूज से टकराएंगे, वहाँ सॉफ्ट टिश्यूज टकराने के बाद ये रिटर्न बैक जो होंगे रिफ्लेक्ट होकर एक इमेज बनाएंगे, और ये आपको कंप्यूटर पर एक शोइंग इमेज मिल जाएगी। ओके, दैट इज रिजल्ट्स। The angle of incident is the angle of the ultrasound beam and tissue plane. For reflection angle and incident the less than 90° reflection occurs tissue boundaries and tissue interfaces. Here यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम जो अल्ट्रासाउंड में जब यूज करेंगे ट्रांसड्यूसर का, तो उसको हम पर्टिकुलरली फेसेस में उसका यूज करेंगे, पर्टिकुलर फेसेस में, जिससे क्या होगा कि पर्टिकुलर फेसेस के अकॉर्डिंग हमको उसका सेक्शन बाय सेक्शन उसकी इमेजेस मिलेगी। इंसिडेंट लेस देन 90° एंगल्स। ओके, टिश्यू बाउंड्रीज दैट आर परपेंडिकुलर टू द अल्ट्रासाउंड वेव path act excellent reflectors, whereas tissue boundaries that are parallel to ultrasound wave path act as poor reflection. When the ultrasound wave is not reflected either due to the parallel tissue boundaries or high acoustic impedance, the ultrasound signal is not recorded and the display show a lack of signal or drop out the ultrasound pictures. अब आपने देखा होगा कि जैसे ही हम पेशेंट के ऊपर ट्रांसड्यूसर का जब यूज करते हैं, जब हम हमारे हाथ में जो एक कैमरे की तरह होता है ट्रांसड्यूसर, जिसको हम पेशेंट के ऊपर उसको रोटेट कर रहे हैं, उस रोटेशन से हम पर्टिकुलर एंगल पे 90 डिग्री उसको रोटेट कर रहे हैं, तो उसको क्या होगा, पर्टिकुलर एंगल से हमको एक रिफ्लेक्ट इमेज मिलेगी, जो हमको कंप्यूटर पर क्या होगा, वो एक कंप्यूटर पर एक शो इमेज होती रहेगी, जिससे हमें पर्टिकुलर उसका पर्टिकुलर
सेक्शन की इमेज आपके पास आती रहेगी, जो आपको हम नेक्स्ट इमेज में शो करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ये दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स के बाद आप देखेंगे ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि आप यहाँ देखिएगा, बिसाइड्स एंगल इंसिडेंट द टिश्यू बाउंड्रीज विड्थ इम्पैक्ट द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्ट सिग्नल if the tissue boundaries width is less than the wavelength of the ultrasound wave. The ultrasound wave will not be reflected. Tissue boundaries that the smooth and have width greater than the ultrasound wave act as minor specular reflector, which results in a significant amount of reflection of the signal. आप यहाँ देखिएगा, आप यहाँ पर ये ट्रांसड्यूसर का यूज कर रहे हैं। ओके, दिस इज ए ट्रांसड्यूसर जो हम अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, और दिस इज वाइट पोर्शन इज द पेशेंट, वाइट पोर्शन इज द पेशेंट एंड जो रेड पोर्शन इज द ट्रांसड्यूसर जो हम यूज कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर। अब यहाँ पर हम ड्रॉप आउट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दिस इज मूवेबल, मूव हेयर, दिस आर बी, दिस इज एल बी साइड मूव। जब हम इसको पर्टिकुलरली मूव करेंगे इस ट्रांसड्यूसर को, तो क्या होगा कि हमारे पर्टिकुलर सेक्शंस की आपको इमेज शो इन होने लगेगी। जब दिस इज मूविंग, आफ्टर दैट शो इन इमेज इन दिस साइड। ओके, दिस इज इमेज शो इन दिस पार्ट एंड दिस इज मूव हेयर एंड शो इन दिस हेयर एंड अदरवाइज शो इन मूव दिस साइड एंड शो इन दिस इज इधर है। यानी कि कहने का मीन्स दैट यहाँ पर हम जिस तरह से अपना रोटेट करेंगे ट्रांसड्यूसर्स को, ट्रांसड्यूसर रोटेट करेंगे, सेम एज शो इन figure in this videos. Okay, thank you.